kids, welcome to today's maths class and today we'll do symmetry and patterns. So इस चैप्टर में हम सिमेट्री और पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से डिफरेंट पैटर्न फॉर्म होते हैं, नंबर से भी हो सकते हैं, शेप से भी हो सकते हैं और उनमें किस तरीके से सिमेट्री होती है. फर्स्ट वी स्टार्ट विद द वार्म अप एक्टिविटी. Decoding message. Veena and Radha decide to send message to each other by email. They decide to use the following code. ये उनका कोड है. Let us code the following message. See you in the evening. So S के लिए क्या यूज़ किया है? हम सर्च करेंगे लाइक लेटर S है तो D है. E के लिए यूज़ किया है 4. इस तरीके से हम Y के लिए जो यूज़ किया J, O के लिए हैश एंड U के लिए F. तो इस तरीके से हम पूरे इसको जो मैसेज है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं. नेक्स्ट सिमेट्री. व्हाट इज सिमेट्री? Symmetry is getting the same thing again after some transformation in word. When a shape or figure is divided into two equal shape or size, we call the shape figure symmetry. अगर किसी भी फिगर को हम टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके जो एक पार्ट दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करे तो हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिकल है. The line which divide the shape into two identical half वो क्या कहलाती है? Axis of symmetry. जो लाइन है like here, ये जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी और ये जो फिगर है वो सिमेट्रिकल होगा. लुक एट द शेप ऑफ ट्री. ड्रॉन द इमेजिनरी लाइन पासिंग द हॉरिजॉन्टल थ्रू द सेंटर. इस तरीके से अगर पास करे तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? नहीं. नाउ ड्रॉ अ लाइन इस तरीके से वर्टिकली अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. दैट मीन्स सो अल्फाबेट टी इज ओनली वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. क्लियर? द शेप can have the vertical axis of symmetry, horizontal axis of symmetry or both. So shape में या तो vertical हो सकती है, horizontal या दोनों हो सकती है. तो A में अगर हम देखेंगे it has vertical symmetry, B में horizontal है, O have both vertical and horizontal, J have no line of symmetry. Clear? Diagonals line of symmetry इसमें देखेंगे and the figure has 4 line of symmetry. Clear? Now practice time 14.1. List the following. All the capital letter of the English alphabet that are symmetrical about the vertical axis such as A. So हमें ऐसे लेटर लिखने हैं जिसमें vertical line of symmetry हो तो A हो जाएगा, H हो जाएगा, then M, O हो जाएगा, T में होगी, U में होगी, V, W, X. So all these letters have vertical line of symmetry. क्लियर? Y में भी हो जाएगी. नेक्स्ट, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो अगर कार की बात करें तो यहाँ से अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं. सो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी. क्लियर? नेक्स्ट, सिमेट्री इन द प्लेन शेप. Geometrical shape also have the symmetry. Any plane figure is said to be symmetrical about the line if the line divide the shape into two equal halves. So shape have one line of symmetry, some have two, some have even more and some have no line of symmetry. So यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्राइंगल और इसमें देखेंगे तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री है, टू लाइन ऑफ सिमेट्री, थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री, फोर लाइन ऑफ सिमेट्री है and it has no line of symmetry. When the figure is symmetrical, the other half of the figure can be drawn by looking at the given figure. Symmetrical है तो हम दूसरा हाफ उसको देख के ड्रॉ कर सकते हैं. Next, practice time 14.2. Draw the line of symmetry for each of the following. So अगर equilateral triangle है तो 3 line of symmetry होगा, but for this we'll draw this is the line of symmetry. Clear? Next, complete the following symmetrical shape. So हम क्या कर सकते हैं? अदर हाफ को देख के इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं. Clear? Next, tessellation. What is tessellation? The tessellation is the collection of plane or simple figure that fill the plane to form the pattern without leaving any space or overlap in between. तो tessellation में क्या होगा? कोई शेप होगा, रिपीट होगा जिससे पैटर्न फॉर्म होगा बट उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, वो कहीं भी ओवरलैप नहीं करेंगे. सो शेप फिटेड टुगेदर फॉर्म द पैटर्न, दिस इज कॉल्ड द टेसलेशन. ये एग्जाम्पल है टेसलेशन के. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन. What is reflection? Reflection show the image of a surface corresponding to the appearance. Reflection from the mirror throws back the image shown. To produce reflection from an object mean to produce mirror image. जैसे कि अगर हम मिरर में देखते हैं तो हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं
अपनी इमेज देखते हैं. इन द सेम वे राइट ग्लव प्रोड्यूस इज मिरर इमेज. क्लियर? जो इमेज होगी वो सेम होगी, ओनली साइड उसकी चेंज हो जाएगी जब हम उसको मिरर में देखेंगे. नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम 14.3. जनरेट द 3 डिफरेंट टाइल पैटर्न यूजिंग स्क्वायर. सो स्क्वायर को यूज करके आप 3 पैटर्न लाइक इस तरीके से बना सकते हैं. आप एक पैटर्न इस तरीके से बना सकते हैं, बिकॉज गैप नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट में आप ऐसे कर सकते हैं. इस तरीके से कोई भी आप 3 पैटर्न्स अलग अलग बना सकते हैं स्क्वायर का यूज करके. क्लियर? नेक्स्ट, राइट लेटर LDZY and read their image through the mirror. What does each letter look like? तो आपको इनको देखना है मिरर में और किस तरीके से लिखते हैं. क्लियर? जनरेट 2 बॉर्डर पैटर्न ऑफ द लेटर P यूजिंग रिफ्लेक्शन. सो आपको रिफ्लेक्शन का यूज करके P का लेटर का यूज करके जो है एक पैटर्न बनाना है. स्लाइड, फ्लिप एंड टर्न्स. अब हम देखेंगे स्लाइड, फ्लिप्स और टर्न्स. स्लाइड क्या होता है? अ स्लाइड टेक प्लेस व्हेन द शेप इज स्लाइड अक्रॉस अ लाइन. स्लाइड मतलब खिसकाना. जैसे किसी भी शेप को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपने इस प्लेस से मूव करें तो वो क्या होगा? स्लाइड. नेक्स्ट, फ्लिप. अ फ्लिप टेक प्लेस व्हेन द शेप इज फ्लिप्ड अक्रॉस द लाइन एंड फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन. लाइक अगर आप बी को फ्लिप कर दे तो क्या हो जाएगी? उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. टर्न्स. अ टर्न टेक प्लेस व्हेन द शेप इज टर्न थ्रू एन एंगल. मींस किसी एंगल पे. लाइक ये ओरिजिनल पोजीशन है, अगर 1/4 टर्न करेंगे तो इस पोजीशन में आ जाएगा. देन हाफ में इस तरीके से, 3/4 में इस तरीके से, ये आपको बता रखा है. क्लियर? नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम 14.3. जैसे ये शेप है, अब अगर आप इसको फ्लिप करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, बिकॉज आप इसकी साइड भी चेंज करेंगे तो ये वैसे ही रहेगा. स्लाइड करेंगे तो भी वैसे ही रहेगा. अब टर्न डिपेंड करता है कि आप कितनी डिग्री पे कर रहे हैं. क्लियर? तो अगर टर्न करेंगे तो इस तरीके से भी हो सकता है. क्लियर? नेक्स्ट, पैटर्न्स. व्हाट आर पैटर्न? पैटर्न क्या होते हैं? अ पैटर्न इज अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट, डायग्राम और नंबर. मीन्स कोई भी नंबर या कोई भी शेप या कोई भी डायग्राम एक रिपीट हो रहा है और एक सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है तो वो क्या बनाता है? पैटर्न. देयर कैन बी अ रेगुलर फॉर्म ऑफ ऑर्डर इन विच द सीरीज ऑफ थिंग अकर. पैटर्न कैन बी फाउंड इन नेचर, इन नंबर्स. अगर आप देखोगे आपकी क्लोथ में, बेडशीट में, ग्रिल पे, कई जगह पे आपको पैटर्न देखने को मिल जाएंगे. इवन नेचर में यू कैन सी द पैटर्न्स. देयर कैन बी अ रेक्टेंगल फॉर्म और ऑर्डर इन विच सीरीज ऑफ थिंग अकर. क्लियर? पैटर्न्स इन नेचर. नेचर की बात कर रहे हैं तो लुक एट द लीफ एंड इट्स पैटर्न. अगर लीफ में आप देख सकते हैं पैटर्न. कट एन अनियन एंड सी द पैटर्न. अगर आप अनियन की रिंग्स में देखें तो उसमें एक पैटर्न दिखाई देगा. बाय लुकिंग एट द स्काई यू कैन फाइंड द पैटर्न फॉर्म बाय द क्लाउड्स एंड स्टार्स. पैटर्न इन नंबर्स. नंबर्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट द ब्यूटिफुल पैटर्न. सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगुलर नंबर. नंबर लाइक 1, 3, 6, 9 जिसको हम कैसे ट्राइंगल की शेप में अरेंज कर सकते हैं. लाइक हियर 3 को इस तरीके से, 6, 9, तो ये क्या कहलाएंगे? ट्राइंगुलर नंबर. नाउ कैन यू राइट द नेक्स्ट नंबर. सो आपने देखा 1, 3, 6, 9 दीज आर ट्राइंगुलर नंबर. सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 12. स्क्वायर नंबर्स. नंबर्स लाइक 1, 4, 9, 6 जिसको हम स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं वो क्या हो जाएंगे? स्क्वायर नंबर्स. क्लियर? सो अगर हम देखें 1, 4, उसके बाद 9 आ जाएगा, 16 आएगा. इस तरीके से ये सारे क्या नंबर्स हैं? स्क्वायर नंबर्स. सम मोर पैटर्न्स. Observe the pattern given below and try to write the entries which will come next. 1 into 9 plus 2 that is 11. अब हमने क्या किया? यहाँ पे 1, 2 आ गया into 9 plus 3 1, 1, 1. सो यहाँ पे देखो 1, 2, 3 इस तरीके से इंक्रीज होता जा रहा है और 1 इंक्रीज होता जा रहा है. सो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 into 9 plus 5 that is equals to 1, 1, 1, 1, 1 5 टाइम. क्लियर? तो आपको पैटर्न का ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग फिल करना है. Multiplication table also show some beautiful pattern. Look at the table of 6 and 8 given below. So यहाँ पे 6 की टेबल है. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. The ones digit repeat themselves after the fifth multiple.
फिफ्थ के बाद आप अगर देखेंगे वंस की जो डिजिट है 6, 2, 8, 4, 0 ये रिपीट हो रही है। अगर आप 8 में देखेंगे तो इसमें भी यही हो रहा है, आफ्टर फिफ्थ मल्टीपल के बाद वंस की प्लेस की डिजिट जो है रिपीट हो रही है, तो ये एक पैटर्न बना रहे हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम 14.4, जनरेट द स्क्वायर एंड ट्रायंगल पैटर्न विद द हेल्प ऑफ 36 डॉट। तो आपको 36 डॉट लेके एक ट्रायंगल पैटर्न बनाना है और स्क्वायर पैटर्न बनाना है कि किस तरीके से आप अरेंज करेंगे। क्लियर? जैसे ट्रायंगल पैटर्न बनाना है, स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, तो इस तरीके से आप टोटल 36 डॉट बनाएंगे और इसी तरीके से स्क्वायर पे अरेंज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, लुक एट द सिमेट्री इन द नंबर, राइट द नेक्स्ट 3 लाइन्स। सो आप 1 इंटू 1 11, 11 इंटू 11 121। सो एवरी टाइम 1 इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे क्या आ रहा है 1, 2, 3 और फिर से रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1, 1, 1, 1 इंटू 1, 1, 1, 1 4 टाइम्स। सो ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर? नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Take the correct option. The line which divide the shape into 2 equal halves is called the axis of symmetry. So C is the correct option here. So यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है कि सिमेट्री क्या होती है, किस तरीके से पैटर्न फॉर्म होते हैं। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।